Assalamu alaikum student, mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, this is a question on coordinate geometry and this question has been taken from the past paper. The reference of the question is June 2016, P1 question number 14. This is a paper 1 question and it has 3 marks. The first part is of 1 mark and the second part is of 2 mark. Let's just begin the video by reading out the question. I hope this video will be helpful for you. The question says the coordinates of the midpoint of the line AB are 1 and 2. The coordinates are given and these are the coordinates of a midpoint of a line AB. The length of the line AB is 10 units. So two things are given to us. The first thing is the midpoint of the line AB and the second thing is the length of line AB. The first part says if the gradient of AB is 0, find the coordinates of A and B. In the second part, the gradient is now 3 upon 4 of the same line. The line is the same, that is AB, but now the gradient is 3 upon 4 and we again have to find the coordinates of A and B. So we have to find the coordinates of A and B and we have two parts. In the first part the gradient is 0 and in the second part the gradient is 3 upon 4. So since the question is talking about a line, so I'm just starting with a rough sketch. I have just drawn a line over here, that is line AB. This is my point A, this is my point B. And since the midpoint is given, the coordinates of A and B are not given. We have to find the coordinates of A and B. The midpoint is given, and you know that the midpoint lie in the center of the line. So this is the center of the line, almost center of the line. So this is the midpoint, 1 and 2. And since this is the midpoint, so this point will divide my line into two equal parts. So the total length is 10 units. So the distance from M to A will be 5 units and M to B will also be 5 units because this is the midpoint, and we know that the midpoint will divide my line into two equal parts. So 10 is the total length, 10 divided by 2 is 5. So this will be 5 units and this will also be 5 units. So in the first case, the gradient of the line is 0. We have to find the coordinates of A and B. So we just now have to recall what does this gradient 0 means. हमने क्लास में चार केसेस जो है वो डिस्कस किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर लाइन का ग्रेडियंट जो है वो ज़ीरो होता है तो इसका मतलब है कि लाइन हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की है एंड दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल, सो द ग्रेडियंट इज ज़ीरो। ठीक है, तो ये यहाँ जो ये चीज़ बता रहा है ना कि द ग्रेडियंट इज ज़ीरो, तो वो आपको ये बताना चाह रहा है कि यू हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तो मैंने रफ स्केच बनाया ना, तो रफ स्केच में तो हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनाते हैं। तो अब फर्स्ट पार्ट में द क्वेश्चन इज टेलिंग यू दैट यू हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन सिंस द ग्रेडियंट इज जीरो। ठीक है, तो अब मैं तीन इंफॉर्मेशन यूज करने वाला हूँ। द फर्स्ट थिंग इज द मिड पॉइंट। ठीक है, मैं पहले मिड पॉइंट प्लॉट करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि भाई ग्रेडियंट जीरो वाली लाइन कैसे बनती है, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा और उसके बाद मैं उसको देखूंगा कि भाई मेरी लाइन जो है वो 10 यूनिट्स की है। जब वो 10 यूनिट्स की हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आई कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो इसके लिए मुझे प्रॉपर एक जो है ना ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे थोड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैंने देखो यहाँ जो है वो ग्राफ बनाया हुआ है। दिस इज माई कार्टेशियन प्लेन और दिस इज वाई एक्सेस। ये आपको वाई एक्सेस नजर आ रही है, आपने इस पर वाई लिख दिया। ठीक है, और दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अच्छा, ये वाली साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये वाली साइड जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, और ऊपर की साइड पर अगर आप मूव करते हो तो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, नाउ आई एम स्टार्टिंग टू लेबल माय ग्राफ। जो कार्टेशियन प्लेन है उसको लेबल कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 हो गया एंड -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये तो मैंने थोड़ा सा ग्राफ बना लिया। अब मैं अपना क्वेश्चन की सोल्यूशन जो है, जो वर्किंग है, वो स्टार्ट करता हूँ। और कहाँ से स्टार्ट करूंगा? फर्स्ट आई विल प्लॉट माय मिड पॉइंट। पहले मैं मिड पॉइंट प्लॉट करता हूँ। द मिड पॉइंट इज 1, 2। द फर्स्ट वैल्यू बिलोंग्स टू एक्स एंड द सेकंड वैल्यू बिलोंग्स टू वाई। सो आई हैव टू गो एट 1, मतलब पॉजिटिव 1 है। इसका मतलब है कि मैं एक्स की जो है वो मतलब पॉजिटिव साइड पे मूव करना शुरू करूंगा और ये 1 हो गया। अब मुझे 2 जो है वो पॉजिटिव वाई चाहिए। इसका मतलब है आई हैव टू मूव अप, मुझे 2 ऊपर जाना है। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो मैंने ये अपना मिड पॉइंट जो है उसको मार्क कर दिया। ये 1 हो गया एंड दिस इज 2। सो दिस इज माय मिड पॉइंट। और सिंस यू नो दैट ये लाइन ए बी का मिड पॉइंट है, तो डेफिनेटली ये लाइन पे तो लाई करेगा। तो इसका मतलब है कि अब मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूंगा।
जो कि लाइन 1 और 2 से पास हो रही है। देखो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अब मुझे कैसे पता चला कि आई हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन? बिकॉज उसने ग्रेडियंट दी थी मुझे 0। तो मुझे आइडिया हो गया कि अच्छा ग्रेडियंट 0 वाली लाइन है ये, तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल। तो पहले मैंने मिड पॉइंट को प्लॉट किया, ये मेरा मिड पॉइंट आ गया। ये कैसे आया? 1 आगे और 2 ऊपर, तो ये मेरा मिड पॉइंट आ गया। और फिर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना वो इस मिड पॉइंट से जो है वो पास होते हुए मैंने ड्रॉ कर ली, बड़ी सी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आप इसको जो है वो एक्सटेंड कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो दो इन्फॉर्मेशन मैंने यूज़ कर ली, मैंने मिड पॉइंट यूज़ कर लिया और मैंने ग्रेडियंट 0 वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ करके मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। नाउ आई हैव टू मेक श्योर दैट द लाइन ए बी इज ऑफ 10 यूनिट्स। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि 10 यूनिट्स की मुझे लाइन बनानी है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंस दिस इज माई मिड पॉइंट, तो मैं यहाँ से 5 यूनिट्स इस साइड पे जाऊँगा। ठीक है, फॉरवर्ड। और फिर यहाँ से 5 यूनिट्स जो है ना वो मैं बैक जाऊँगा। और फिर जो भी पॉइंट आएगा मैं वहाँ रुक जाऊँगा। ठीक है, चलो पहले फॉरवर्ड चलते हैं। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट 1, मैं 1 पे खड़ा हुआ हूँ। अब मुझे 5 आगे जाना है, तो 1 ये हो गया, 2 पे आ गया। फिर ये 2 हो गया तो 3 पे आ गया। फिर ये 3 हो गया तो 4 पे आ गया। फिर ये 4 हुआ तो 5 पे आ गया। और जब 5 यूनिट्स कंप्लीट होंगे तो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हो जाऊंगा आके। अब ये पॉइंट क्या है? x की वैल्यू यहाँ है 6 और y की वैल्यू क्या है 2, तो दिस पॉइंट इज 6 एंड 2। इसको मैंने b का नाम दे दिया। तो ये मैंने अपने b कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए। नाउ आई हैव टू मूव बैक 5 यूनिट्स। अब मुझे पीछे जाना है 5 यूनिट्स, तो मुझे अपना a कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ? आई एम स्टैंडिंग एट 1। अब मैं पीछे जाता हूँ, ये हो गया 1 यूनिट, तो मैं 0 पे आ गया। फिर ये 2 हो गया तो मैं -1 पे चला गया। फिर ये 3 हो गया तो मैं -2 पे आ गया। फिर ये 4 हो गया तो मैं अगेन -3 पे आ गया। और फिर 5 यूनिट्स मुझे आगे जाना था, तो मैं जो है वो इस वक्त यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो दिस इज माई कोऑर्डिनेट ए। अब इसकी वैल्यू पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू? द वैल्यू ऑफ एक्स इज -4। तो हमेशा पहले एक्स की वैल्यू आती है, तो मैंने -4 लिख लिया। एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 2, तो ये 2 हो गया। तो इसका मतलब है मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -4 एंड 2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज 6 एंड 2। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। मैंने 3 इन्फॉर्मेशन यूज़ की। फर्स्ट आई प्लॉटेड द मिड पॉइंट। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी लाइन की टाइप कैसी है, कैसे मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसने कहा कि भाई यू हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन हैज ग्रेडियंट 0। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली बड़ी सी। और फिर आखिर में उसने मुझे बोला था कि भाई योर लाइन इज ऑफ 10 यूनिट्स। तो मैंने क्या किया, मिड पॉइंट से 5 यूनिट्स आगे गया, तो मुझे बी कोऑर्डिनेट मिल गया। और 5 यूनिट्स जब मैं पीछे गया तो मुझे जो है वो ए कोऑर्डिनेट मिल गया। अब ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है ये 10 यूनिट्स है। और ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए -4 एंड 2। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 6 एंड 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ ग्रेडियंट जो है वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनेगी। ग्रेडियंट इसने यहाँ दी हुई है 3/4। ठीक है, द लाइन इज द सेम। लाइन ए भी ही है, उसका मिड पॉइंट 1 और 2 ही है। लाइन की लेंथ जो है वो 10 यूनिट्स ही है। बस उसका ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। और ग्रेडियंट क्या है? 3/4। हमें पता है कि ग्रेडियंट जो है वो राइज अपॉन जो है वो रन के बराबर होता है। न्यूमरेटर में हमेशा राइज आता है और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आता है? रन। तो हम यही वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज कर रहे हैं। दिस इज राइज अपॉन रन। तो राइज है मेरे 3 का और रन जो है वो 4 है। मतलब मुझे, और चूंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है आई हैव टू मूव 3 यूनिट्स अप एंड 4 यूनिट्स फॉरवर्ड। ऐसे ही है ना? ये है राइज और ये है रन। ठीक है, राइज अपॉन रन है। तो राइज मतलब ऊपर मुझे 3 जाना है और आगे मुझे 4 जाना है। तो अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करता हूँ ग्रेडियंट के, और अपने पॉइंट्स को मार्क करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा? आई विल बी स्टार्टिंग विद द मिड पॉइंट। तो मैंने यहाँ एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, इस ग्राफ को जो है वो जल्दी से लेबल करने की ऐसे जरूरत नहीं, हम लोग खुद ही काउंट करके कर लेंगे। तो ये जो है वो हमारा वाई एक्सेस हो गया, इसको वाई लिख देते हैं। और दिस विल बी एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाला हो गया। और ये वाला जो है वो नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहले मैंने अपना मिड पॉइंट प्लॉट किया, 1 और 2, यहाँ पे आ गया मैं। ठीक है, दिस इज यहाँ x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, ये 2 हो गया। और दिस इज 1, ये 1 हो गया। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद द मिड पॉइंट। हमेशा मिड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अब मुझे कहाँ जाना है? आई हैव टू, अब मुझे एक आगे पॉइंट मार्क करना है और एक पॉइंट पीछे मार्क करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, 3 अप जाता हूँ और 4 फॉरवर्ड जाता हूँ। ठीक है, तो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट 2। एक ऊपर ये गया। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया। 3 यूनिट्स में ऊपर चला गया। अब मुझे 4 जाना है फॉरवर्ड। मुझे 4 जो है वो फॉरवर्ड जाना है, क्योंकि दिस इज 3/4 ना।
तो मैंने मिड पॉइंट मार्क किया पहले अपना, मिड पॉइंट से अब मैं ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, 3/4। तो 3 इज द राइज एंड 4 इज द रन। तो 3 राइज का मतलब है 3 मुझे ऊपर जाना है, तो ये 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, अब आगे कितना जाना है, 4। अब जरा 4 जाते हैं आगे। तो ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 3, और ये हो गया हमारे पास 4। तो आफ्टर गोइंग 4 यूनिट्स फॉरवर्ड, मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया जिसको मैंने अपना पॉइंट बी बोल दिया। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स पढ़ लेता हूँ। यहाँ y की वैल्यू 5 है और यहाँ x की वैल्यू भी 5 ही है। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट बी जो मैंने फाइंड आउट किया है वो आ रहा है 5 और 5। ठीक है, कैसे किया, बाय यूजिंग दिस ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट से किया, 3 ऊपर गया, ये मैं 3 ऊपर गया हूँ, यहाँ मैंने 3 लिख दिया और यहाँ मैंने 4 लिख दिया। अब मुझे ये देखना है कि ये जो मेरा बी कोऑर्डिनेट आया है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस बी एंड ये मिड पॉइंट, क्या ये 5 है? क्योंकि मुझे तो पता है ये मिड पॉइंट है और मुझे लाइन की लेंथ जो है वो 10 यूनिट्स चाहिए, तो ये डेफिनेटली 5 होना चाहिए। तो वो मैंने कैसे फाइंड आउट किया, सिंस ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने क्या किया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने वेरीफाई किया कि ये जो मिड पॉइंट से लेके बी तक का डिस्टेंस है ये 5 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, और जो मेरे पास बेस है वो है 4। मेरे पास बेस क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो मैंने यहाँ 16 लिख लिया, और उसके बाद उसमें मुझे ऐड करना है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। व्हाट इज परपेंडिकुलर, 3, 3 स्क्वायर इज 9। 16 और 9 को ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 25। और चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर को रिमूव करना है, तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 25 का। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो इसका मतलब है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट टू द पॉइंट बी इज कमिंग आउट एज 5 यूनिट्स, जो कि मुझे चाहिए था। मुझे ये 5 यूनिट्स ही चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइन जो है उसकी लेंथ जो है वो 10 यूनिट्स है, तो ये इसका हाफ पार्ट है, तो ये 5 यूनिट्स होना चाहिए था। तो ये 5 यूनिट्स आ गया, इसका मतलब है दिस इज माय करेक्ट कोऑर्डिनेट। मैंने उसको टिक कर लिया, और मैंने यहाँ जो है वो बी की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 5 लिख दी। अब नाउ आई हैव टू फाइंड द सेकंड पॉइंट। अभी मैं फॉरवर्ड गया था, अब मैं जो है इन दोनों चीज़ों को रिवर्स कर लेता हूँ। अभी मैं ऊपर गया था, अब मैं 3 यूनिट जाऊंगा नीचे। तो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट 2। तो एक यूनिट जाऊंगा तो 1 पे पहुंच जाऊंगा, फिर एक और नीचे जाऊंगा तो 0 पे पहुंच जाऊंगा, फिर एक और नीचे जाऊंगा तो -1 पे पहुंच जाऊंगा। तो ये -1 हो गया, मैं यहाँ -1 लिख देता हूँ। अब नाउ आई हैव टू मूव बैक 4 यूनिट्स। अभी मैं फॉरवर्ड गया था ना 4, अब मैं 4 बैक जाऊंगा, तो अभी मैं, ठीक है, तो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट 1, अभी मैं 1 पे खड़ा हूँ। अब नाउ आई हैव टू मूव 4 यूनिट्स बैक। तो ये एक यूनिट हो गया तो 0 पे आ गया, 2 यूनिट हुआ तो -1, 3 यूनिट हुआ तो -2, एंड आफ्टर 4 यूनिट्स आई विल बी एट दिस पॉइंट, जो कि मेरा पॉइंट ए है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये -3 है एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू जो है वो -1 है। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, और ये -4 हो गया। और ये तो x की नेगेटिव वैल्यूज थी, और y की जो है वो तो सिर्फ -1 नज़र आ रही है, क्योंकि ग्राफ मेरा इतना ही है। तो आफ्टर गोइंग 3 यूनिट्स डाउन एंड 4 यूनिट्स बैक, मैंने अपना सेकंड पॉइंट जो है वो भी लोकेट कर लिया है, और जो सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -3 एंड -1। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये 3 है, ये 4 है, तो डेफिनेटली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट्स ही होगा। मैंने पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव भी कर दिया। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स भी मैंने फाइंड कर लिए, -3 -1, और मैंने बी के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लिए, 5 एंड 5, जस्ट बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट। यहाँ तो ग्रेडियंट 0 थी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, बिल्कुल मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, तो यहाँ मुझे राइज और रन का कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इन द सेकंड पार्ट द ग्रेडियंट वाज 3/4, तो मुझे यहाँ राइज और रन की जो कॉन्सेप्ट था वो यूज किया मैंने, और यहाँ से मैं जो है वो ऊपर गया 3 यूनिट्स, और 4 यूनिट आगे गया, तो मुझे मेरा जो है वो एक कोऑर्डिनेट मिल गया। और फिर मैं 3 यूनिट जो है वो नीचे गया हूँ, और 4 यूनिट्स में पीछे गया हूँ, तो मुझे यहाँ दूसरा यूनिट भी, अपना दूसरा कोऑर्डिनेट भी मिल गया। और फिर मैंने वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ भाई ये जो दो कोऑर्डिनेट्स मेरे आए, इन दोनों के दरमियान जो लेंथ आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स।